तमाम साथियों की तरफ से आप सबको तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान, क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और जो मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी न किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज़ भी, मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पर हालांकि there is no such proposal in front of the government, and when we have proposals we will announce them, we will not leak them in the form of rumors. हम बाज़ाब्ता आपसे आके कहेंगे ना ये हमारा प्रपोजल है, फिलहाल इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं। Whatever the court ultimately decides, ये मामला हाई कोर्ट में रिजॉल्व नहीं होगा, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, and whatever the cabinet subcommittee recommends or decides, it would be bound by what the Supreme Court orders. ये पैरेलल में अपना काम कर लेंगे, वो अपना कर लेंगे। Ultimately what the Supreme Court decides on this matter is what will be bound for all of us. The National Conference, and I'm not here addressing a party press conference, therefore that is another issue, but the National Conference is part of the India bloc. The Congress is supporting this government. At the moment it's outside support. In this very hall, or just outside this hall, after we took oath, a senior Congress leader was asked and had said that they will remain out until statehood is restored. I assume that is the position of the Congress, because I haven't heard any change after that. Third question was about BOS. Auction of properties. There is no proposal at the moment for auctioning of properties in Gulmarg. There is a genuine problem with regard to leases, and we are in the process of formulating a policy for lease renewal, how to go about it. A lot of hotels in Gulmarg have had their leases expired. Similar is the case here. There are properties in Pahalgam with expired leases. Some of the confusion was caused by the Roshni scheme being struck down by the courts, because those people with live leases opted to exercise the Roshni right and took freehold. When that was struck down, they now neither have freehold nor leasehold. So this is something that the government is aware of. And we also saw that later on you people communicated using poem literature. So I just want to know, has the communication stopped internally between you people? Are you not has communication stopped between whom? You and Ruhollah Saab. Also, my question is that is Ruhollah Saab not aware of the powers that his ruling party has? Look, why he chose to protest outside the gate of the Chief Minister's residence, only he can answer. Is he aware of the powers or not? Only he can answer. Is the communication there? I have never been, or he and I have never had the sort of relationship जहाँ मैं सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग करूँ और रात को गुड नाइट करूँ। बीच बीच में जब बात करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं, जिस तरह मेरे बाकी साथियों के साथ रहता है। Because of the wider message that may go out, I should, but I don't. बाकी आप इससे खुद क्या निकाल लेते हैं, वो ठीक है। Which is why again I got into trouble by some people, क्योंकि जम्मू के अस्पताल के फंक्शन में उन्होंने मुझे पगड़ी बंधवा के दी, उस पे भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई। Now, if we are unhappy because some people refuse to wear a skull cap,
How can we then say कि नहीं ना आपने पगड़ी बंधवाई तो आपने गलत किया? In somebody's culture we respect that culture ना. मेरे पगड़ी बंधवाने से मेरा मजहब कमजोर नहीं होता. My करना चाहूंगा कि उन्होंने हक की बात की और इमरान साहब ने जो बात की है यहाँ पे गुलिस्तान से, सर हमें पता नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है और किन लोगों को बुलाया जाता है. सवाल मेरा यह है सर, 2016 में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह है कि जो न्यूली जो फैशर्स जो है न्यूज़पेपर्स वाले जो है, हर साल बाद उनकी जो एंटरटेनमेंट कमेटी कायम की जाएगी, वो उसका जो अदाला किया जाएगा, उनकी जो मामला मुश्किलात है. लेकिन सर 2019 में लास्ट एंटरनल कमेटी जो मुनक़द हुई है हेडेड बाय मिस्टर सरमद हफीज साहब, ही वाज आवर कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट. सर एम्पैनलमेंट कमेटी पे उस वक्त ये नोट किया गया है. करिए ना, जिसने आपको यहाँ पहुँचाया आप जवाब उनसे ले लीजिए ना. Take the next one. No, I'm done. I'm done. Mohammed Aslam from TNA. Whoever got you here, you get the answer from them. चले ना. Mohammed Aslam from TNA. ज्यादा पीछे जाते हैं. लड़ लिया. अब मुझे मौका मिला है यहाँ लोगों की खिदमत करने का और मैं उस मौके का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा. एक मौका भी नहीं गवाऊंगा. और जो उसके बाद लोगों तक है ना, अगर वो मेरे काम को पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा सबक सीखने का मौका मिलेगा. उमर साहब इसको यहाँ बेचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए ना. मुझे 2 महीने और कुछ दिन, आप बैठे ना तो हो गया. मुझे 2 महीने और कुछ दिन हो गए यहाँ, ना हो प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, ना होम मिनिस्टर के तरफ से, ना बीजेपी के किसी लीडर के तरफ से, ना राजभवन के तरफ से किसी तरह का भी कोई ऐसा दबाव आया है मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर कि हम अपनी सोच में कोई बदलाव लाएं या हम अपने अल्फाजों को तब्दील करें या हम अपना मौक़िफ़ बदलें. पहले दिन से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबों ने मुझे एक ही चीज कहा कि ना ठीक है, अगर लोगों का फैसला कुछ और होता, हुकूमत बीजेपी की होती और आप ऑपोजिशन में होते, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया, बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया और आपको हुकूमत करने का मौका दिया. आपको कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपकी हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी. जो ताउन हमने इससे पहले एलजी साहब को दिया था, वही ताउन हम आपको देंगे. आप लोगों की खिदमत करिए. वी विल रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये वजीर आजम साहब के अल्फाज हैं, ये होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं. अब जो लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? सर्दियों में वो हमाम में बैठ के अफवाहों को चलाने के अलावा और कुछ नहीं करते. मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, वो लोग अफवाहें फैलाएं. Azza Zainab, Asian News. हम सबसे पहले हमारी सरकार में हमने सब अकाउंटेबल बनाया. जो लोग काम नहीं करते हैं आज वो 8 ही बजे 9 ही बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जो हम डिसीजन देते हैं वो डिसीजन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए बाद में आके मुझसे कोई बताए. लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत से नगर पहुंचा देंगे बिना मजबूत मिले. और मैंने ये कहा, इसमें हम हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पर दबाव नहीं डाला. ऐसा नहीं है कि डीसी हजरात ने या डिलकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप जबरदस्ती अपने मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो. उन्होंने अपनी मर्जी से किया. यही जम्मू कश्मीर है और इसी जम्मू कश्मीर को लोग खुद बचाएंगे. हुकूमत को इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी. जब जब इस चीज की जरूरत पड़ेगी लोग खुद ब खुद करेंगे. That is that. I mean, so much of what we want is tied to that. Then there are these challenges of day-to-day governance. Jammu and Kashmir operates a deficit budget. We spend more than we earn.
Therefore, we are more dependent on Government of India than a lot of other states and territories. Delhi is a union territory, is a state, but it's a hybrid state. It has a sort of peculiar government like ours, but they have a huge advantage that we don't have. They operate a surplus budget. We operate a deficit budget. That is a problem for us. We talked about electricity. Unemployment is a problem for us. Tourism is a huge opportunity for us. But at the moment, our tourism is limited to a handful of areas. Growing the areas that see tourist footfall, that is something we'd like to see. Growing tourism into parts of Jammu that are untouched but have a lot of potential. That is an area for us. And continuing to consolidate on an improving law and order and security situation. That also is something. Look, no security functionary जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो उसके लिए कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ईमानदारी से इस सिलसिले में हिस्सा लिया है उनको फिर अपनी नौकरी और इंसाफ मिल जाना चाहिए. Just because there is investigation which has been brought in, which is nowhere in the rest of the country. I can be an accredited journalist if I apply in Delhi, but I can't be an accredited journalist if I apply in Kashmir. Because I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say more than that. Your second question was, what was the thought process behind going to Delhi rather than going to court? Simply that going to court would be a fight. A fight is never your first option. A fight should always be your last option. Your first option is to remind Government of India of the promise they made. If Government of India had not promised that statehood would be restored, if the Supreme Court had not talked about restoration of statehood at the earliest opportunity, then I guess our first option would have been the court. But given that the Prime Minister, Home Minister, others, whether in Parliament, whether in public meetings, whether in private meetings, they have committed themselves to restoring statehood to Jammu and Kashmir. Clearly, we have to give them the first opportunity to restore it. Every government or every individual has the right of recourse to courts, but that was never going to be our first option. It would always be the last one. वज़ीर आज़म साहब दबाव में ना आए और चादर भेजें, यही हमारी उम्मीद होगी. सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते. जितने मुसलमान जाते हैं उतने ही गैर मुसलमान जाते हैं वहां पे. बहुत लोगों की जो है के जज्बात वहां से जुड़े हुए हैं. और जहां तक हर मस्जिद के नीचे अब लोग मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने तो शुक्र है इस चीज पे रोक लगाई है. वो ओवरऑल इसमें एक फैसले पे आएंगे, वो फैसला सब पे जो है लागू होगा. कानूनी समझा जाता था. हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे. उनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा. मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई. इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे. उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना. लेकिन जहाँ तक
रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ। रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा। फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग looked at and we will both will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP कहते हैं कि कई सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बेहतरी होगी, और खासकर विंटर्स में, क्योंकि समर्स में ऑब्वियसली बेहतर होती है जनरेशन, उनकी कुछ चीजें समझते हैं, लेकिन विंटर्स में हर साल वही कहानी दोहराई जाती है कि अब होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन अभी भी सब जीरो टेम्परेचर इस साल काफी हार्श है, लोग फिर काफी सफर कर रहे हैं बिजली को लेके सब जगह ना, श्रीनगर आपने नॉर्थ साउथ कश्मीर। तो ये ठीक कब होगा? आपने कहा मीटिंग जब 100% होगी, कहते कि मीटिंग जब होगी, तो कोई टाइमलाइन और ठीक तो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेज जो है वो 50% से ज्यादा है। मतलब हर समय बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से। Thank you. So, how are you assuring the people from this concern? Because the agriculture department obviously has said that this is the productive land has shrunk in Kashmir. So, what is the assurance from these हमारी farmers? अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर जमीन को लेकर। हम अपनी जमीन बढ़ा नहीं सकते, और ये वो जमीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया, और अब उनसे वो जमीन वापस ली जाए। मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वक्त मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न कि उस जमीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं,
मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहां के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहां लोग चाहते हैं. Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और मिलेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to share, I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, कहना अगर उनको वहां नहीं चाहिए, मैं आपको जमीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. फारूक वानी, राइट कश्मीर. और ये मैंने बार-बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं. मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है. उस हक को MP साहब ने इस्तेमाल किया. लेकिन इसमें भी आप देखिए ना, हालात कैसे बदल गए. मुझे वो साल याद हैं जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात. जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए. और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है. तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा. वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके. अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है. और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा. हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं. लोगों के जो एस्पेक्ट डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं. लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात जो है हमें उनका कदर करना होगा. और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज करना होगा, उन पर उतर आना होगा. तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं. और मैं जानता हूँ कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फिलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं. लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के ज़रिए जो हैं मैं उनको एड्रेस करूं. अगर मुझको छोड़ के बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें भी डायरेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें. बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कहते कि अब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन साहब से कहूँगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें. Actually, that is a question easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to pre-2014? I can't answer that for you.
as far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't answer. Nobody has been given a slip of paper and asked, ये सवाल पूछ लो. You are free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to. इमरान नाइक अकाउंटेबिलिटी होगी एक. दूसरा, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था SO61. अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे, उन्हें भी अभी तक वो स्टाइफन जो है वो. सवाल मेरा यह है कि हम तो सबकी स्टोरीज करते हैं, सबके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंड कश्मीर पहली जगह हुई है JNK जहाँ जर्नलिस्ट के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है. और थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए, हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवाल भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है. और मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूं आपसे, ताकि मैं नहीं अब स्ट्रीमलाइन किस तरह, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं. स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में हैं तो अब मल्टीमीडिया का दौर है. अब इस मल्टीमीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं. तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आज का वो माइक लेके ऑफिस पे जाता है, उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म. नीड टू टेल हु शुड बी अ जर्नलिस्ट एंड हु शुडंट. वो जहाँ जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनको करना होगा ना. बिकॉज कल को फिर शिकायत होगी कि लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है या रिकग्निशन नहीं दी जा रही है, कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं. अब मैं आप ये मतलब मेरी तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए. मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें, ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें. एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि आपके मसले क्या है, उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है. तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब. पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं. बिल्कुल ले रहे हैं. हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था. जो गलत था उसको दुरुस्त करना है, जो सही था उसको आगे चलाना है. ये तो मतलब हमारी पहले दिन से कोशिश रही है. और जो दूसरा सवाल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था, बाद में उसको रिवाइव किया गया वेटिंग लिस्ट. अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी की जरूरत है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी. तो आज की डेट में प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स कहीं में नहीं मिलेंगे. अब जबकि एक बच्चा डिप्लोमा करता है उसको कहीं पर भी आपका जो EDI है वो उनको कहीं पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है. ना उनके लिए कोई स्कीम है, ना उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी है. ये सारी चीजें जो है इस वक्त अगर हमारा टेक्निकल अगर गवर्नमेंट सर्विस है ही नहीं, हम बोलते हैं आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ पे है. और कुछ चीजें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, जो हमने देखा है, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आके हमें कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और जहाँ को नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. ACB के पास मामला है, उसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता. उनको अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धांधली है. अभी इससे पहले मुझसे सवाल पूछा गया कि जो आप अकाउंटेबिलिटी लाओगे या नहीं.
यही एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी लाने का। अगर कहीं धांधली हुई है, अगर कहीं पैसे की लेन देन हुई है, अगर कहीं पर receive a subsidized or free education, it's part of his legacy. This hall that we're sitting in, it was conceived and put into place by him. It's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly, of the martyrs of 13th July. And that's how it is. Sarosh Kafir Funzari, please raise your hand so that we... जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में। उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा अवेलेबिलिटी लाने में। लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम जरूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपुरा का नाम लिया है और आप जरूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपुरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती है लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके जरिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम जरूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सके और बाकी जो है वो उस चीज से रुक जाए। शुक्रिया। National conference that were mentioned in your manifesto, because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why they voted for your party. As far as statehood or the restoration of Communist Restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But on a 5-year term of government, not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year, and therefore some of the things that we had promised may be symbolic but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power announcement, but we felt that it was more important to actually focus on increasing the quantum of supply for the first few months, and then go ahead with the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our sort of commitment, which has been evidenced by our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well. Fayaz Bukhari from अंडरस्टैंड किया कि ये जो नया सिस्टम है, तो मगर ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके मिनिस्टर साहब के पास जाना चाहिए या इनको राजभवन जाना चाहिए। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस सरकार का डोमेन क्या है?